Hello everyone. So next lecture में we will going to discuss about the types of operating system. Okay. So as we know in the last lecture, in the lecture first, we have gone through the foundation of what the operating system is. So we have gone through the fundamentals. Okay. And what about the basic how an operating system basically interacts with the users and the system hardware. Okay. So we have the operating system in between that is required to interact with the hardware of the computer system. Now next we talk about the types of operating system. Now even though there are number of types of operating system, for example if you start with we have the serial operating system, then we have a batch operating system, then we have a interactive operating system, then we have multi-programmed operating system, then we have a time sharing operating system, then we have real time operating system, then we have network operating system, distributed one, then we have clustered operating system also, then handheld operating system, then we also have a multi-processor operating system. Okay, so these are the different operating systems that are available, and even though these are just the types of operating system, and the important ones from these operating system are the batch operating system, multi-programmed, time sharing, real time, and multi-processor operating system. Okay, so these are the most important operating systems that are being used nowadays. Other types of operating system like network and distributed are also being used depending upon the underneath architecture, but we will be going through these basics operating system one by one. So first we talk about the batch operating system. We have a batch operating system. Now as the name suggests, now batch basically means that the tasks, or also known as jobs, that are arranged in the form of batch. So batch means a group, and how this group is formed, it depends upon the task or jobs requirement. Okay, so what type of jobs or tasks that are there, so what are their requirements. So if the jobs have similar requirement, they will form a batch. So batch, we can refer batch as a combination of similar jobs. So those jobs or those tasks that have same requirements from the machine, that will represent a batch. Okay, now in batch operating system, how batch operating system works basically, now we have an operating system in which different jobs in a batch are generated by the user program and so on. Okay, so this entire will represent a batch. Okay, now this jobs are basically allocated to the CPU. Okay, now CPU here is the main processor which will be executing the jobs. Okay, and there is also input output devices that are available. Now for example, if any job require a input output device, it can goes to the accessing the IO devices. So that means when a job
requires any IO device, okay, so IO device, then it is the CPU will pass the job to IO. Now once the job is forwarded to the IO, in the meantime the CPU will sit idle. So CPU will not perform any other task. Okay, so that means once a job is being forwarded to the IO device based on the requirement, तो जॉब का जो टाइम है, जो CPU का जो टाइम है, उस टाइम वो फ्री रहेगा. CPU अपना कोई भी काम और नहीं करेगा, इट विल सिट आइडल. तो हम क्या बोलेंगे कि जॉब का जो कंप्लीशन टाइम है, जॉब कंप्लीशन टाइम, वो किसके इक्वल होता है? इट इज़ CPU टाइम, मतलब वो जितना देर वो CPU के पास रहा प्लस IO टाइम. तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू द CPU टाइम प्लस IO टाइम. ठीक है. तो इस तरह जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है. और कोई भी जॉब को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो वो पहले वो मेन मेमोरी में आता है. तो मेन मेमोरी में होगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको CPU के पास लेके जाएगा. ओके, सो दैट मीन्स कि जो इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज टू प्लेस द जॉब into the CPU. So that is the main responsibility. Okay, और जैसे ही फर्स्ट जॉब कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जॉब जो है वो CPU को एलोकेट होगा. So one task after the another, one job after the another will be how the task will be executed in batch operating system. इसका जो एग्जाम्पल है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, वी कैन कंसिडर देयर इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम IBM OS2. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज देयर. अब इसका जो लिमिटेशन क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, मेजर लिमिटेशन जो है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का वो ये है, इसमें जो यूटिलाइजेशन है, CPU utilization is very less. उसका कारण क्या था कि जब जॉब जो है वो CPU से IO डिवाइस की तरफ जाएगी तो CPU जो है वो आइडल रहता है. ठीक है, तो यानी कि जो टाइम है वो वेस्ट हो रहा है CPU का. CPU उस टाइम पे कोई काम नहीं कर रहा. तो इस तरह से CPU का यूटिलाइजेशन जो है वो कम है. इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है जिसको हम बोलते हैं थ्रूपुट. ओके, थ्रूपुट का जो बेसिक टर्म है, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स में भी आप ये टर्म यूज़ करोगे. सो बेसिकली हम जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ जॉब्स एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो नंबर ऑफ जॉब्स जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रूपुट. तो ये पर यूनिट टाइम है, इट कैन बी, यू कैन कंसिडर इट एंड पर सेकेंड भी आप ले सकते हो इसको, पर आवर भी ले सकते हो, पर मिनट भी ले सकते हो. तो जितनी जॉब जो है एक सेकेंड में हो रही है, एक आवर में हो रही है, एक मिनट में हो रही है, अकॉर्डिंगली जो थ्रूपुट है हम सिस्टम की वो डिफाइन करते हैं. ओके, सो क्योंकि इसमें CPU यूटिलाइजेशन कम है और हमने देखा अभी बैच में जब तक एक जॉब कंप्लीट नहीं होता दूसरी जॉब जो है वो CPU को एलोकेट नहीं होती. तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी थ्रूपुट इज़ वेरी लेस. सो योर थ्रूपुट इन केस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी लेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो सेकेंड टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने अंडरस्टैंड करना है, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग. मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ एज द नेम सजेस्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स multiple programs या jobs can be executed
executed at the same time. अब इसमें बैच ऑपरेटिंग से क्या मॉडिफिकेशन होगा? अब हमारे पास जो सिस्टम है, वी हैव अ ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट जॉब्स हैं. लेट्स सपोज J1 है, J2, J3 है, J4 एंड सो ऑन. ओके, तो इसमें क्या है, तो ये हमारे पास CPU आ गया और ये है IO. अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, लेट्स सपोज J1 जो है वो CPU को एलोकेट किया गया. नाउ व्हेन J1 विल आस्क फॉर IO रिक्वेस्ट, सो J1 IO पे चला गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस पे चला गया. उस टाइम पे जो सेकेंड जॉब है, J2 जॉब है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड टू द CPU, यानी कि CPU इसमें आइडल नहीं रहेगा. ओके, तो इसको हम ले लेते हैं नंबर 1, इसको ले लेते हैं नंबर 2. यानी कि जैसे ही J1 ने IO का रिक्वेस्ट किया, इट इज शिफ्टेड टू द IO डिवाइसेस एंड इन द मीन टाइम अनदर जॉब जो है वो CPU को एलोकेट हो गया. ठीक है, जो मतलब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो लिमिटेशन था, जो आइडल वाला चीज़ था, उसमें ये चीज़ नहीं आएगा. ठीक है, इसमें क्योंकि आइडल नहीं रहा, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो CPU की यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी. CPU यूटिलाइजेशन इज वेरी लार्ज. और क्योंकि CPU यूटिलाइजेशन लार्ज है, तो इसमें हम थ्रूपुट भी क्या बोलेंगे, थ्रूपुट इज ऑल्सो लार्ज. ठीक है, तो इसमें थ्रूपुट भी इंक्रीज होगा. क्लियर? सो दिस इज योर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. सिमिलरली इसी का एक कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ना मल्टीटास्किंग जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है. बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो जॉब्स हैं, द जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड इन टाइम शेयरिंग मैनर. इन टाइम शेयरिंग मैनर. ठीक है, सो टाइम शेयरिंग मैनर का क्या मतलब है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और डिफरेंट जॉब्स हैं. ओके, तो जब CPU के पास कोई जॉब एलोकेट होगा, तो कुछ टाइम के लिए, लेट्स सपोज कुछ टाइम यूनिट्स के लिए ये एग्जीक्यूट होगा. लेट्स सपोज T1 टाइम यूनिट्स के लिए जो J1 है वो एग्जीक्यूट होगा. सो आफ्टर T1 टाइम यूनिट जो ये जॉब है J1, ये वापस मेन मेमोरी में आ जाएगा और ड्यूरिंग दैट J2 जो है वो एग्जीक्यूट करेगा. ओके, सो दैट मीन्स मल्टीटास्किंग में जो जॉब जो है वो रेगुलर टाइम के लिए CPU को एलोकेट होंगी और आफ्टर दैट न्यू जॉब जो है वो CPU को एलोकेट हो जाएगी. ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है, और इसको हम फॉर्मली बेसिकली क्या बोलेंगे कि फॉर स्पेसिफिक टाइम जॉब्स आर पुट ऑन द CPU. मतलब कुछ टाइम के लिए CPU को देंगे और एज द टाइम एक्सपायर्स न्यू जॉब्स आर एलोकेटेड टू CPU. तो जैसे टाइम एक्सपायर होगा, न्यू जॉब जो है वो CPU को प्रोवाइड कर दी जाएगी. ओके, तो जैसे हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है और यूनिक्स हैं, ये सारे जो हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, so this is about your multitasking operating system. इसमें एडवांटेज क्या होगा, सो एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 जो है वो थ्रूपुट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा. इसमें थ्रूपुट विल इंक्रीज. सेकेंडली
जो इसमें यूटिलाइजेशन है सीपीयू का वो भी बढ़ जाएगा. सीपीयू यूटिलाइजेशन इज ऑल्सो more. Okay, so these are the advantages of your multitasking operating system. Now next type है हमारे पास मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ एज द नेम सजेस्ट, नाउ मल्टी प्रोसेसर यानी कि मल्टीपल सीपीयूज हैं हमारे पास. वी हैव CPU 1, CPU 2, CPU 3 and so on, and they are basically sharing the same memory. We have a memory. Okay, they will share the same memory. So that means it is one system with multiple processors. So just like we have a dual core quad core, so जिसमें 2 CPUs होंगे, 4 होंगे and so on. So just like that we have one system in multiple processor, they will be sharing the memory. इसके आगे 2 टाइप्स होती है मल्टी प्रोसेसर की, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक. They have symmetric and asymmetric. We'll come back to the symmetric and asymmetric later on. तो उससे पहले इसमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल CPUs हैं जो कि टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ओके, तो इसमें जो है अगेन थ्रूपुट इंक्रीज होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ टास्क जो हैं, क्योंकि हर सीपीयू इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करेगा टास्क को, तो थ्रूपुट जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज करेगी. और सेकंड एक एडवांटेज है इसका रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मीन्स कि अगर एक सीपीयू फेल हो जाता है तो लेकिन जो रिमेनिंग है वो वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी जो है इसकी ज़्यादा होती है. और ऑल्सो इट इज़ मोर इकोनॉमिकल. ठीक है, कहने का मतलब है इकोनॉमिकल का मतलब क्या है, इट इज़ मोर चीपर वे. अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ बाइंग n सिस्टम्स जो हैं विद 1 CPU ईच इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ बाइंग 1 सिस्टम विद n CPUs. ओके, तो मतलब कॉस्ट जो है, अगर हम n इंडिविजुअल सिस्टम लेते हैं जिसमें यूनी प्रोसेसर है, और ऑन दी अदर हैंड अगर हम कंसिडर करते हैं एक सिंगल सिस्टम जिसमें मल्टी प्रोसेसर है, तो कॉस्ट जो है इसकी कम होगी मल्टी प्रोसेसर की. ओके, सो दिस इज योर मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसी तरह हमारे पास एक और इसकी जो कैटेगरीज हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की, एक हमारे पास जैसे मैंने बताया वी हैव अ सिमेट्रिकल, वी हैव अ एसिमेट्रिकल. तो सिमेट्रिकल में क्या होता है, इन सिमेट्रिकल इसमें जो हर प्रोसेसर है, ईच प्रोसेसर runs its identical copy of OS. मतलब हर प्रोसेसर के पास एक अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉपी होती है. ओके, मतलब ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं आपस में. सो ऑल द प्रोसेसर CPUs आर इंडिपेंडेंट. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एसिमेट्रिक की बात करूं, एसिमेट्रिक में एक हमारे पास में मास्टर प्रोसेसर होता है, लेट्स सपोज इट इज़ अ मास्टर प्रोसेसर एट द टॉप, और एक पास में बाकी जो होते हैं वो स्लेव्स होते हैं, स्लेव CPUs. सिमिलरली स्लेव CPUs. ओके, सो डिफरेंट स्लेव CPUs होते हैं.
नाउ दी मास्टर प्रोसेसर जो है वो इनको टास्क असाइन करता है, स्लेव सीपीयूज को। ओके मतलब एक टास्क जो है वो डिवाइड कर देगा डिफरेंट स्लेव सीपीयूज में, और ये सारे जो सीपीयूज हैं ये अपना टास्क एग्जीक्यूट करके वापस मास्टर प्रोसेसर को रिप्लाई करेंगे। और ये जो रिलेशन है इसको हम बेसिकली बोलते हैं मास्टर स्लेव रिलेशन, मास्टर स्लेव रिलेशन। और अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करूं तो उसमें हमारे पास जो सीपीयूज थे जो आइडेंटिकल कॉपी रिप्रेजेंट करते हैं और जो इंडिपेंडेंट है उनको हम बोलेंगे पीयर टू पीयर सिस्टम, पीयर टू पीयर। ओके सो सिमेट्रिकल में पीयर टू पीयर है, एसिमेट्रिकल में मास्टर स्लेव रिलेशन होता है हमारे पास। ओके सो दिस इज योर सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल मल्टीप्रोसेसर सिस्टम। और जो नेक्स्ट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट है दैट इज योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ रियल टाइम जो नाम से ही पता लग रहा है विच इज बेसिकली स्ट्रिक्ट डेडलाइन बाउंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब है कि अगर मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ, लेट्स सपोज मैं आपको n टास्क देता हूँ, n tasks are given to be executed in m seconds, in m seconds, तो जो टास्क है वो n सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, यानी कि टाइम टेकन by system, by operating system for n tasks should be less than or equal to m seconds. Okay, तो these such types of systems are known as real time. तो इसके दो कैटेगरीज होती है, एक होती है हमारे पास हार्ड रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम जो नो or even you can say minor delay is even not acceptable. So even minor delay is not acceptable. मतलब कुछ नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड का भी जो डिले है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन सैटेलाइट लॉन्चिंग, ठीक है, तो माइनर डिले इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। ओके और अगर मैं सेकेंड टाइप दैट इज सॉफ्ट रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम में माइनर डिले जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, माइनर डिले इज एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैंकिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, ओके तो बैंकिंग सिस्टम जैसे अगर हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा बैलेंस कुछ टाइम के बाद अपडेट होता है, तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। सो सच टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज रियल टाइम। अच्छा हार्ड रियल टाइम का एक और हम इसको बोल सकते हैं कि अगर जो थोड़ा सा भी डिले आ जाए तो एंटायर सिस्टम में गेट फेल्ड, सो एंटायर सिस्टम कैन फेल। तो जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग में भी अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाए तो इट माइट रिजल्ट टू द फेलियर ऑफ द एंटायर सिस्टम, लेकिन सॉफ्ट रियल टाइम में ऐसा नहीं है। ओके सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स which are important for you to understand. Okay and after this the next topic that we will discuss in the next video will be about the process management. Okay अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक्स को लेके, फंडामेंटल्स को लेके, तो डू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स, और आई विल ऑल्सो बी पुटिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर you in the comment box, and also you can download the notes which I have formed from the link that will be there in the description of this video. Okay so thank you everyone, and we'll meet again in the next video. Thank you.